السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ خان۔ کھیل کی خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ رمیسا قریشی۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ سب سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ معیشت کی ترقی کا تاریخ ساز منصوبہ، 5 سالہ پروگرام پائیدار ترقی کا روڈ میپ، اڑان پاکستان۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے قومی اقتصادی منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ ڈیجیٹل معیشت، توانائی، انفراسٹرکچر، ماحولیات اور روزگار کے مواقع، ملکی معیشت کو مضبوط اقتصادی پلیٹ فارم ملے گا۔ موجودہ دور ڈیجیٹل معیشت کا ہے۔ منصوبے کا محور برآمدات کا فروغ۔ عوام نے ہمت اور حوصلے سے مشکل حالات کا مقابلہ کیا۔ ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کر یکسوئی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا تقریب سے خطاب۔ ماضی کی حکومت کے متکبرانہ ناپسندیدہ رویوں سے دنیا میں تنہا ہو گئے۔ دوست ممالک کو ناراض کیا گیا۔ چیلنجز کے باوجود معاشی استحکام کے حصول میں کامیاب ہوئے۔ سیاست کی بجائے ریاست کو بچانے کا فیصلہ کیا۔ قومی مفاد ہمیشہ مقدم رکھا۔ ترقی کے لیے ٹیکس شرح میں کمی اور ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہوگا۔ آئی ٹی شعبے کے فروغ کے لیے تمام وسائل فراہم کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اڑان پاکستان پروگرام کی تقریب سے خطاب۔ معاشی ترقی کے اہداف سیاسی استحکام سے ہی حاصل ہو سکتے ہیں۔ 2013 میں 3 E's کا پروگرام دیا، اہداف حاصل کیے، ملک سے اندھیروں کا خاتمہ کیا۔ شہباز شریف کی قیادت میں 2022 میں ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ IMF پروگرام کامیابی سے مکمل کیا۔ معاشی استحکام کی منزل جلد حاصل کریں گے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کا تقریب سے خطاب۔ ڈیفالٹ ریٹ میں 93% کمی، افراط زر 38 سے کم ہو کر 5%، پالیسی ریٹ 13% پر آ گیا۔ اسٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ تیزی، سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ قومی اقتصادی پلان کے ذریعے نجی شعبے کی حوصلہ افزائی، سرمایہ کاری اور شرح نمو میں اضافہ کرنا ہے۔ سستی توانائی اور برآمدات کا فروغ ترجیح، پائیدار ترقی کے لیے معاشی استحکام ناگزیر ہے۔ سرمایہ کاری کے لیے SIFC کی کاوشیں اہم ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اڑان پاکستان کی تقریب سے خطاب۔ قرضوں کی ادائیگی معیشت پر بوجھ، قرض کے چنگل سے نجات حاصل کرنا ہوگی۔ وزیر اعظم کے دلیرانہ اقدامات کی بدولت معیشت مستحکم ہو رہی ہے۔ انسانی وسائل کی ترقی، تعلیمی شعبے پر توجہ دینا ہوگی۔ سیاسی عدم استحکام اور پالیسیز کا عدم تسلسل معاشی ترقی کو متاثر کرتا ہے۔ مربوط مواصلاتی روابط کے ذریعے پاکستان کو تجارت کا مرکز بنانا ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال کا تقریب سے خطاب۔ ہوم گرون قومی اقتصادی منصوبہ میڈ ان پاکستان معاشی اصلاحات کا ایجنڈا ہے۔ ملک ڈیفالٹ سے استحکام کی طرف آیا، اب استحکام سے ترقی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ تمام معاشی اشاریے مثبت، قومی اقتصادی منصوبے سے معاشی ترقی کا سفر طے کریں گے۔ عوام کو خوشخبریاں ملیں گی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ۔ مستحکم معیشت ہی مضبوط پاکستان کی ضامن۔ 5 سالہ ترقی کا منصوبہ ملک کی خوشحالی کے لیے اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری۔ 2025 میں پاکستان ٹیک آف کر جائے گا۔ 5 سالہ منصوبے میں شاندار مستقبل پوشیدہ ہے۔ سینیٹر طلال چودھری، وزیر مملکت علی پرویز ملک اور طارق فضل چودھری کا اڑان پاکستان کے حوالے سے اظہار خیال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ترک کونسل جنرل کی ملاقات۔ تجارت، تعلیم، صحت، زراعت اور سیاحت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ ترکیے کے سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کریں گے۔ بزنس کمیونٹی کے لیے ون ونڈو آپریشن کو مزید فعال بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز۔ محفوظ پاکستان، مضبوط پاکستان، خوارج اور دہشت گردوں کے لیے کوئی معافی نہیں، ریاست کی واضح پالیسی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی قیادت میں رواں سال آپریشنز میں اہم کامیابیاں۔ دہشت گردوں اور سہولت کاروں کے خلاف 59,000 سے زیادہ کارروائیاں۔ کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کی بدولت اہم سنگ میل عبور۔ معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے SIFC کی اہم کامیابیاں۔ پاکستان کو افغان سرزمین سے آزادانہ دہشت گرد کارروائیوں پر تحفظات ہیں۔ ایک پاکستانی کی جان اور حفاظت افغانستان پر مقدم ہے۔
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर। कौम को नए साल की मुबारकबाद। बर्फ पोश इलाकों में तैनात पाक फौज के जवान मुल्क व कौम की हिफाजत के लिए पुरअज़्म। दुआ है कि नया साल खुशियां और कामयाबियां लाए। सरहद पर इसलिए बैठे हैं कि हमारे वतन का झंडा बुलंद रहे। इदारों की तौहीन काबिल सजा जुर्म। गिलगित की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक वज़ीर आला को 34 साल की सजा सुना दी। खालिद खुर्शीद को 6 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। डीजी नात्रा को मुजरिम का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म, गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल किया जाए। अदालत की आईजी पुलिस को हिदायत। गाजा पर इसराइली बमबारी में मजीद 27 फलस्तीनी शहीद, मुताद्दिद जख्मी। जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले में 4 फलस्तीनी शहीद, शोहदा में खवातीन और बच्चे भी शामिल। शिमाली गजा की नाकाबंदी जारी। खाने पीने की अशिया की किल्लत, सर्दी, बारिश और तेज हवाओं की वजह से बेघर फलस्तीनियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा। सख्त मौसम की शिद्दत से शीरखार बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक। शोहदा की मजमूई तादाद 45,540 हो गई। मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने की मज़मूम भारतीय साजिश। काबिज इंतजामिया ने राजौरी में मजीद 2 कश्मीरियों की जायदादें जब्त कर लीं। हुर्रियत रहनुमा और मासूम कश्मीरियों पर काले कवानीन के तहत झूठे मुकदमात। उधमपुर में मजीद 3 बेगुनाह अफराद गिरफ्तार। 5,000 से ज्यादा अफराद गैर कानूनी तौर पर नजरबंद। दो 2024 का सूरज तल्ख और शीरी यादों के साथ गुरूब। मुख्तलिफ ममालिक में नए साल का शानदार इस्तकबाल। न्यूजीलैंड के सिटी टावर और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हार्बर ब्रिज पर आतिशबाजी। पाकिस्तान में 3 घंटे बाद नए साल का आगाज। महकमा मौसमियात ने तवील खुश्क साली के बाद बारिशों की नवीद सुना दी। बारिश का सबब बनने वाली हवाएं कल से मगरबी इलाकों में दाखिल होंगी। गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 5 जनवरी तक वक्फे से बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। Series win in Australia in 22 years. साल 2024 कौमी क्रिकेट टीम ने मजमूई तौर पर 42 बैनुल-अक़वामी मैचेस खेले, 18 मैचेस जीते। वनडे में पाकिस्तान की कारकर्दगी मुतासिर कुन रही। इंटरनेशनल मैचेस में कौमी टीम की कारकर्दगी पर रिपोर्ट भी बुलेटिन का हिस्सा। Forward by Bruno Guimaraes, and he's found Anthony Gordon, gets a cross in towards the black post. That is. And Tonali now, looking for Gordon. और ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस दिफाई चैंपियन बल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रियोव का फातिहाना आगाज। जर्मनी के यानिक हेन्फमैन को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त। खवातीन सिंगल्स में ट्यूनिस की एनिस जाबिर की कामयाबी। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं तफसील की जानिब। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 5 साला कौमी इक्तिसादी प्लान उड़ान पाकिस्तान का इजरा कर दिया है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पायदार तरक्की के रोड मैप का महवर मुल्की बरामदात का फरोग है। उन्होंने कहा कि मिसाक मईशत वक्त का तकाजा है, हमें इत्तेहाद और यकजहती के जरिए आगे बढ़ना है। मजीद तफसील बताएंगे मोहम्मद मजहर अब्बास। होम ग्रोन कौमी इक्तिसादी ट्रांसफॉर्मेशन प्लान मुल्की मईशत की तामीर और तरक्की का तारीख साज मनसूबा है, जिसका मकसद मईशत को मजबूत इक्तिसादी प्लेटफॉर्म मुहैया करना है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौमी इक्तिसादी प्लान 2024-29 उड़ान पाकिस्तान के लोगो और वेबसाइट का बाकायदा इजरा किया। इस मौके पर कौमी इक्तिसादी प्लान उड़ान पाकिस्तान की किताब की भी रोनुमाई की गई। कौमी इक्तिसादी प्लान उड़ान पाकिस्तान मुआशी हक़ाइक़ को सामने रखते हुए 5 E's फ्रेमवर्क पर मबनी है।
جس میں برآمدات کا فروغ، ڈیجیٹل معیشت، ماحولیات، توانائی و انفراسٹرکچر اور مساوی مواقع کی فراہمی پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ گزشتہ 9 مہینوں میں ہمیں بے پناہ چیلنجز کا سامنا رہا، لیکن اس کے باوجود معاشی استحکام حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ پچھلے 9 ماہ میں ڈیفالٹ ٹو ڈیولپمنٹ اینڈ فرام اسٹیبل اکانومی ٹو اسٹرانگ اکانومی، میرے لیڈر محمد نواز شریف اور پارٹیز نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم اپنی سیاست کو قومی مفاد کی خاطر قربان کر دیں گے، اور ہم سیاست نہیں ریاست کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں ان وجوہات کو تلاش کرنا ہے جس سے پاکستان کو معاشی مشکلات کا سامنا ہے۔ گزشتہ دہائی میں ریاستی ملکیتی اداروں نے 6 کھرب کے نقصانات کیے، ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ کرپشن معاشی ابتری کی ایک اور بڑی وجہ ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ موجودہ IMF پروگرام آخری ہو۔ اگر آج ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ماضی میں جو نقصانات ہوئے، ماضی میں جو خرابیاں اور کمزوریاں ہوئیں، ان کو ہم سامنے رکھ کر یکجاں دو قالب ہو کر اگر فیصلہ کر لے کہ ہم نے آئندہ جو سفر اختیار کرنا ہے وہ کام اور کام، محنت اور محنت، تو میں بلا خوف تردید آپ کو کہہ سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ وہ پھر وقت دور نہیں، وہ دن دور نہیں جب پاکستان اقوام عالم میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لے گا۔ موجودہ حکومت کی معاشی کامیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ حکومتی اقدامات کی بدولت مہنگائی کی شرح میں نمایاں کمی اور IT برآمدات میں 34% اضافہ ہوا ہے۔ آج پالیسی ریٹ آپ کا 13% پہ ہے، 5% سے کم مہنگائی آ چکی ہے۔ ایکسپورٹس ان 5 ماہ میں 11% کا اضافہ ہوا ہے۔ ریمیٹنسز ہیں ان میں 24% کا ان 5 ماہ میں اضافہ ہوا ہے۔ 34% IT کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے۔ I for the first time in my political lifespan never experienced this kind of cooperation which I have received from the army chief and the institution۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت منفرد ایک تبدیلی ہے، انتہائی خوش کن کہ حکومتیں اور ادارے مل کر کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پیداواری لاگت میں کمی کے ذریعے زرعی اور صنعتی انقلاب لایا جا سکتا ہے۔ ہمیں شمسی توانائی پر بھرپور توجہ دینا ہوگی۔ ڈیجیٹل معیشت کے ذریعے کاروبار میں آسانی اور کرپشن کا خاتمہ ممکن ہے۔ ملک کو $1 ٹریلین کی اکانومی بنانا حکومت کا ویژن ہے۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے اڑان پاکستان قومی اقتصادی پلان کا اجرا کر دیا گیا ہے، جو 5 E's کا فریم ورک ہے، جس میں تمام طبقوں کو ترقی کے یکساں وسائل فراہم کیے جائیں گے۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ قومی ترقی کا پروگرام اڑان پاکستان وزیر اعظم کی قیادت میں معاشی استحکام کی منزل جلد حاصل کرنے میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ قومی اقتصادی پلان 2024 تا 2029 اڑان پاکستان کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہم سیاسی استحکام سے ہی معاشی ترقی کے اہداف حاصل کر سکتے ہیں۔ تفصیل شیئر کر رہی ہیں مریم ملک۔ وزیر خزانہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے 2013 میں اپنے اہداف حاصل کر کے ملک سے اندھیروں کا خاتمہ کیا، جبکہ 2022 میں بھی ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بہترین افرادی قوت اور قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، ہم یکسو ہو کر ترقی کے راستے پر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اکانومی آل انڈیکیٹرز و سرپلس آج ہم 6% کا دوبارہ ہدف میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں مقرر کر رہے ہیں۔ پاکستان ریچ 6.3%. Pakistan the lowest inflation, less than 4%. Food inflation was 2%. The 5th best stock market in the world, and the second best, and the best in the South Asia. The highest stock foreign exchange reserves, and the very stable currency. وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے کہا کہ وزیر اعظم کے دلیرانہ اقدامات کی بدولت آج معیشت مستحکم ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں چیلنجز کے ساتھ بے پناہ مواقع بھی میسر ہیں۔ احسن اقبال نے کہا کہ آبادی اور وسائل میں عدم توازن کو بہتر بنانا اور سماجی شعبے کی ترقی پر خصوصی توجہ دینا ہوگی۔ Udan Pakistan will serve as a unifying blueprint across all ministries and provinces, ensuring that Pakistan shares a common vision. Udan Pakistan کسی سیاست کا نام نہیں ہے، یہ پاکستان کا قومی پروگرام ہے۔ ہم اپنے وسائل میں اضافہ کریں، ٹیکس ریونیو کو بڑھائیں، اپنی ایکسپورٹس میں اضافہ کریں اور اپنی وسائل پیدا کرنے کی صلاحیت بڑھائیں تاکہ بیرونی
इन्हिसार से हम निजात ले सकें। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि होम ग्रोन नेशनल इकोनॉमिक प्लान के इजरा पर बेहद खुशी है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की लीडरशिप में मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। उड़ान पाकिस्तान economic transformation agenda will pivot around two key principles. Number one, growth will be export-led by fundamentally changing the DNA of the economy based on productivity and international competitiveness. Number two, private sector has to lead this country towards sustainable growth. वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि पायदार तरक्की के लिए मौशी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। कौमी इक्तिसादी प्लान के जरिए निजी शोबे की हौसला अफजाई और सरमायाकारी में इजाफा करना है। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और अरकान पार्लिमान का ये कहना है कि उड़ान पाकिस्तान कौमी इक्तिसादी तरक्की का रोड मैप होगा। रिपोर्ट करेंगे फहद अजीज। उड़ान पाकिस्तान के हवाले से इजहार ख्याल करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान के मौशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं। मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। हमारे तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव हुए हैं, तो ये बड़ा ऑल इंक्लूसिव एजेंडा है जिसके तहत मौशी तरक्की का सफर तय किया जाएगा और पाकिस्तान की अवाम के लिए खुशखबरियाँ होंगी। वज़ीर मुमलिकत खजाना अली परवेज मलिक ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान को जामे और देरपा तरक्की की राह पर गामजन कर रहे हैं। उड़ान पाकिस्तान मंसूबा पाकिस्तान को मौशी खुद मुख्तारी की जानिब ले जाएगा। ये वो तरीका होगा जो पाकिस्तान को जामे और देरपा तरक्की के रास्ते के ऊपर डालेगा। ये वो तरीका होगा जो पाकिस्तान को एक खुद मुख्तार माशी ताकत के तौर पे दुनिया के नक्शे के ऊपर उभार के लेके आएगा। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि 5 साला मंसूबे में शानदार मुस्तकबिल पोशीदा है। पाकिस्तान उन ख्वाबों की ताबीर होगा जो ख्वाब कायद आज़म ने देखे थे। पाकिस्तान मुआशी तौर पर मजबूत होगा, पाकिस्तान में खुशहाली होगी, पाकिस्तान में सरमायाकारी होगी, हमारी मैशत का तरक्की का पहिया इंशाअल्लाह पहले से बेहतर चलेगा। सेनेटर तलाल चौधरी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मैशत ही मजबूत पाकिस्तान की जामिन है। 5 साला तरक्की का मंसूबा मुल्क की खुशहाली के लिए अहम संगे मील साबित होगा। उन्होंने कहा कि मौशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। पायदार तरक्की के लिए हमें मिलकर काम करना होगा, सियासी इस्तेहकाम लाना होगा, पाकिस्तान की मैशत को मुस्तकिल ऐसी उसकी बुनियाद रखनी होगी जो आने वाली कई दहाइयों पाकिस्तान को एक पायदार तरक्की दे। उड़ान पाकिस्तान मुल्क की मैशत को आइंदा 5 सालों में मजबूत इक्तिसादी प्लेटफॉर्म मुहैया करेगा। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। साल 2024 पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की कामयाबी का साल रहा। 100 इंडेक्स ने न सिर्फ 1 लाख की नफसियाती हद को अबूर किया बल्कि साल के ख़त्म पर उसे बरकरार भी रखा। 2024 में स्टॉक मार्केट में 58% का इजाफा हुआ है। मजीद क्या तफसील है, शेयर कर रहे हैं जीशान अहमद खान अपनी इस रिपोर्ट में। 2024 के आगाज पर जनवरी के महीने में 100 इंडेक्स ने 64,000 की सतह से कारोबार का आगाज किया और फरवरी के महीने में मुंतखब हुकूमत के कयाम के बाद स्टॉक मार्केट में इस्तेहकाम आया और मार्केट ने इस सतह को फरवरी के महीने में भी बरकरार रखा। यकम मार्च को 100 इंडेक्स ने एक दफा फिर ऊंची उड़ान भरी और इंडेक्स ने 65,000 की सतह को अबूर किया और महीने के इख्तिताम पर 67,000 की सतह को अबूर किया। माह अप्रैल में 100 इंडेक्स ने 73,000 की सतह को अबूर किया। मई के महीने में वजीर आजम शहबाज शरीफ का UAE का कामयाब दौरा और मुत्तहिदा अरब अमारात का मुख्तलिफ शोबों में $10 अरब की सरमायाकारी में दिलचस्पी का मस्बत असर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर पड़ा और 100 इंडेक्स ने 75,000 की नफसियाती हद को अबूर किया। जून के महीने में बजट में माशी इस्लाहात का असर भी स्टॉक मार्केट पर पड़ा और इंडेक्स 79,800 की सतह पर पहुंचा। नए माली साल 2024-25 में 100 इंडेक्स ने 80,000 की सतह को अबूर किया और बजट इस्लाहात का स्टॉक मार्केट के सरमायाकारों ने खैर मकदम किया। ये साल मईशत के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। ओवरऑल इंटरनेशनल रिलेशनशिप हमारे बहुत अच्छे हुए तमाम ममालिक से। दूसरी जानिब हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ। तीसरी जानिब हमारे जो इंडस्ट्री थी उसकी फाइनेंशियल कॉस्ट जो 22% से भी ऊपर जा रही थी, फाइनेंशियल कॉस्ट में कमी आई। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में कमी का आगाज हुआ और ट्रेडर्स ने स्टेट बैंक के इस इकदाम का खैर मकदम किया। माह सितंबर में 83,000 की सतह पर इंडेक्स ने ट्रेडिंग की और मुसलसल तेजी रही। माह अक्टूबर में स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में वाज़ेह कमी और गैर मुल्की इदारों का मुल्की मईशत पर एतमाद ने स्टॉक मार्केट को 91,872 की सतह पर पहुंचा दिया। सिर्फ नवंबर के महीने में PSX में 12,390 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। महंगाई की शरह और शरह सूद में कमी की वजह से
कैबोर भी 31 माह की कम तरीन सतह पर पहुंच गया और 100 इंडेक्स ने 1 लाख की नफसियाती हद को अबूर कर लिया। साल के आखिरी महीने दिसंबर में शरह सूद 22% से बतदरीज कम होते होते 13% पर आ गई। 100 इंडेक्स साल की बुलंद तरीन सतह 1,17,000 तक पहुंच गया। पूरा साल जो है काफ़ी मुस्बत रहा। रुपी स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन, रेमिटेंसेस देखें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखें, तो आई थिंक ये तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इस डायरेक्शन के अंदर है कि मार्केट जो है दोबारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 2 से 3% दोबारा दिखाएगी और उसके बाद 4 से 5% की तरफ हम जाएंगे। 100 इंडेक्स ने साल के आगाज में 46,000 पॉइंट से तकरीबन 1,17,000 पॉइंट्स का सफर किया, जो कि 64,000 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा है। इस कैलेंडर साल में इंडेक्स में तकरीबन 58% इजाफा हुआ। माली लिहाज से ये इजाफा तकरीबन 4 खरब 8 अरब रुपए से बहुत ज्यादा है, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियों की मार्केट कैपिटलाइजेशन में 51% इजाफा जाहिर करता है। डॉलर के लिहाज से ये इजाफा तकरीबन 53% है, जो कि 18 अरब डॉलर के करीब है। स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड तमाम हिस्से याफ्तगान की मजमूई मालियत इस कैलेंडर साल में 18 अरब डॉलर बढ़ गई है। ये एक तारीखी कामयाबी है जो मार्केट की शानदार कारकर्दगी की अक्कासी करती है। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल मईशत की बेहतरी और बैरूनी सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम करने में अहम किरदार अदा कर रही है। SIFC के ताउन और सहूलतकारी की बदौलत मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। तफसील बताएंगे उमर फारूक। पाकिस्तान की ज़बूं हाल मईशत की बहाली और बैरूनी सरमायाकारी को रागिब करने के लिए जून 2023 में वन विंडो प्लेटफॉर्म के तौर पर SIFC का क़याम अमल में लाया गया। कौंसिल ने मुआशी इस्तेकाम और इक़्तिसादी तरक्की के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए हैं, जिनसे मुल्की मईशत मुसलसल बेहतर हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की काविशों और SIFC की मुआवनत से सऊदी सरमायाकारों के एक बड़े वफ्द ने अक्टूबर में पाकिस्तान का दौरा किया और 2.2 अरब डॉलर के मुआहदों और समझौतों पर दस्तखत किए, जिसका हजम बढ़कर अब 2.8 अरब डॉलर हो चुका है। माली साल के पहले 4 माह के दौरान मुल्क में बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी में 32.3% इजाफा देखा गया। साल 2024 के दौरान तवानाई के शोबे में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 120% इजाफे के साथ 585.6 मिलियन डॉलर तक जा पहुंची है। दीगर अहम शोबों में गैर मुल्की सरमायाकारी में 48% इजाफा देखा गया। SIFC का ये जो तश्कील हुई है, लोग इसको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखना शुरू हुए हैं पाकिस्तान में, जिसमें सर फहरिस्त सऊदीया है, मलेशिया है, अज़रबैजान है। ये जो इन्वेस्टमेंट आई है, ये जो फॉरेन एक्सचेंज आया है, इससे एक इस्तेकाम नज़र आ रहा है, एक स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। बैरूनी मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए भी बेहतरीन मौका है कि वो वापस अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान लाएं। SIFC की काविशों से तरसीलात ज़र में भी नुमाया इजाफा देखा गया है। नवंबर तक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 31.65 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र पाकिस्तान भिजवाई। तरसीलात ज़र में इजाफे के बायस ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा, मुआशी इस्तेकाम और करंट अकाउंट खसारे को कंट्रोल करने में मदद मिली है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना 23% से 13% पे आ गया है और हम समझते हैं कि आने वाले महीनों में ये सिंगल डिजिट पे आएगा। जो ग्रीन इनिशिएटिव लिए हैं SIFC ने, रात में बेपना सरमायाकारी भी होगी। SIFC का दायरा कार को बढ़ाना चाहिए ताकि मजीद इसमें जो सेक्टर्स हैं वो नहीं अभी तक इन्वॉल्व, वो भी इसमें इन्वॉल्व हों। SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान में महंगाई की शरह 6.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। हुकूमत और IPPs के दरमियान अहम मुआहदे पर इत्तेफाक हो गया है, जिससे कौमी खजाने को 300 अरब रुपए तक बचत होगी। इस्लाहात के नतीजे में टैरिफ में 3.5 से 6.5 रुपए फी यूनिट तक कमी का भी इम्कान है। IT को फरोग देने के लिए इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पिशावर, सवात, एबटाबाद और हरीपुर में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन कायम किए गए हैं। ज़राअत, कानकनी, मादनियात, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तवानाई जैसे बड़े मुनाफा बख्श शोबों में दोस्त मुल्कों को सरमायाकारी में सहूलत फराहम करना भी SIFC के अहदाफ में शामिल है। मुल्की मईशत के इस्तेकाम में SIFC का किरदार किसी तारुफ का मोहताज नहीं। इदारे की काविशों से पायदार तरक्की और खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के लिए 2024 माशी लिहाज से अच्छा रहा। मौजूदा हुकूमत के इक़दामात की बदौलत मुल्क न सिर्फ डिफ़ॉल्ट के खतरे से बाहर निकला बल्कि मुआशी तरक्की की राह पर भी गामजन हुआ। 2025 में मईशत मजीद मुस्तहकम होने की तवक्को की जा रही है। तफसील बता रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद।
سال 2024 پاکستان کے لیے کئی حوالوں سے چیلنجنگ رہا۔ ایک جماعت کی جانب سے دھرنوں اور احتجاج کی وجہ سے ملک کو معاشی محاذ پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود معاشی شعبے میں بہتری آئی۔ فروری 2024 میں ملک میں ہونے والے عام انتخابات کے نتیجے میں حکومت سازی کے بعد وزیراعظم محمد شہباز شریف نے معاشی بحالی اور ترقی کو اولین ترجیح بنایا۔ حکومت نے SIFC کے ساتھ مل کر معاشی بحالی کے لیے بھرپور اقدامات اٹھائے، معیشت کو بحال کرنے کے لیے مشکل اور غیر مقبول فیصلے کیے۔ IMF کے ساتھ $7 ارب کا معاہدہ کیا گیا، جس کی وجہ سے دوسرے عالمی مالیاتی اداروں اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بھی بحال ہوا۔ ایک وقت تھا جب درآمدات کے لیے زر مبادلہ ذخائر صرف چند ہفتے کے لیے رہ گئے تھے، لیکن اب زر مبادلہ ذخائر $16 ارب 37 کروڑ کی سطح پر ہیں۔ یہ حکومت آئی تو جو ڈالر ہے وہ 325 کی سطح کو چھو رہا تھا، اور ابھی آپ دیکھیں کہ اینڈ آف ایئر یہ دسمبر میں جو ڈالر ہے وہ 275 روپے کے قریب مل رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایسا کام ہے جس کی وجہ سے جو مہنگائی ہے وہ نسبتاً کم ہوئی۔ وہ اسٹاک ایکسچینج ہے وہ پہلی دفعہ 1 لاکھ کی سطح کو اس نے عبور کیا۔ تو یہ اس چیز کے ثبوت ہیں، یہ اس چیز کے اشاریے ہیں کہ جو معیشت ہے وہ ہماری بہتر سمت کی طرف جا رہی ہے۔ سمگلنگ کی روک تھام اور برآمدات کے فروغ کے لیے اقدامات کیے گئے۔ بیرون ملک سے ترسیلات زر میں بھی ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ مہنگائی اور شرح سود میں کمی ہوئی ہے، جبکہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس 10 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ مثبت اشاریے آئے ہیں، جو آپ کے ڈالر اپنا کنٹرول میں رہا ہے اور آپ کی مہنگائی کی جو شرح ہے وہ نیچے آئی ہے، اور اگلا سال آنے والا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی معیشت کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ اتنی جلدی بہتری ہو گئی ہے، انشاءاللہ آنے والا سال جو ہوگا وہ بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ 2025 میں عوام حکومت سے توقع رکھتی ہے کہ وہ ملک میں پائیدار بنیادوں پر معاشی ترقی کے ساتھ عوام کو مزید ریلیف فراہم کرنے کے لیے اقدامات کو تیز کرے گی۔ 2024 معاشی بحالی کا سال رہا، امید ہے 2025 میں ترقی کا سفر مزید تیز ہوگا۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ پاک فوج نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر قیادت 2024 میں پاکستان کے لیے بے مثال خدمات سر انجام دیں۔ خارج اور دہشت گردوں کے لیے ریاست پاکستان کی واضح پالیسی کی بدولت رواں سال آپریشنز میں اہم کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ تفصیل بتائیں گے حسن ریاض۔ سال 2024 کے دوران مجموعی طور پر سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف 59,775 مختلف میت کے کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے۔ کامیاب آپریشنز کے دوران 925 دہشت گردوں باشمول خوارج کو واصل جہنم کیا گیا، جبکہ سینکڑوں گرفتار کیے گئے۔ دہشت گردی کے اس ناسور سے نمٹنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر 169 سے زائد آپریشنز افواج پاکستان، انٹیلیجنس، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے انجام دیے۔ رواں سال ان آپریشنز کے دوران 73 انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی ہلاکتیں ہوئیں۔ ریاستی اداروں کی بہترین حکمت عملی کے باعث 14 مطلوب دہشت گردوں نے ہتھیار ڈال کر خود کو قومی دھارے میں شامل کیا۔ سیکیورٹی فورسز کی کامیاب حکمت عملی کے باعث 2 خودکش بمباروں کو گرفتار کر کے ملک کو بڑی تباہی سے بچایا گیا۔ آرمی چیف دہشت گردوں، خوارج اور ان کے سہولت کاروں کے بارے میں واضح اور 2 ٹوک موقف رکھتے ہیں۔ پاکستان کو افغانستان کی سرزمین سے آزادانہ دہشت گرد کارروائیوں پر تحفظات ہیں۔ ایک پاکستانی کی جان اور حفاظت ہمارے لیے افغانستان پر مقدم ہے۔ رواں سال غیر ملکی جریدے نے بھی آرمی چیف کو دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کے خلاف توانا آواز بننے پر خراج تحسین پیش کیا۔ واضح ریاستی پالیسی کے پیش نظر رواں سال سمگلنگ، بجلی چوری، بھتہ خوری، ذخیرہ اندوزی کے خلاف بھرپور کارروائی کی گئی۔ رواں سال غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کارروائیوں کے نتیجے میں واضح کمی واقع ہوئی۔ آرمی چیف کی کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کی بدولت رواں سال پاکستان نے اہم سنگ میل عبور کیے۔ کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کی بدولت اہم ممالک کے ساتھ پاکستان میں بہتری اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا۔ غزہ، لبنان اور کشمیر کے مظلوم عوام کے لیے پاکستان اقوام عالم میں ایک مؤثر آواز بن کر ابھرا۔ سال 2024 میں سفارتی سطح پر بھی اہم کامیابی حاصل ہوئی اور پاکستان نے SCO کانفرنس کی میزبانی کی۔ اس کے علاوہ رواں سال کئی اہم ممالک کے سربراہان نے بھی پاکستان کا دورہ کیا اور متعدد معاہدوں پر دستخط کیے۔ NLC نے نہ صرف وسطی ایشیائی ریاستوں بلکہ روس، مشرقی یورپ، چین اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ تجارت کے
फरोग के लिए राह हमवार की। आर्मी चीफ का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि क़वायदो ज़वाबित के बगैर आज़ादी इज़हार राय तमाम माशरों में इखलाकी कदरों की तनज़ली का बायस बन रही है। गुमराह कुन प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ और गलत मालूमात के फैलाव की रोकथाम के लिए रवां साल कानून साजी भी की। हुकूमत और अस्करी क़यादत की तमाम काविशें और कामयाबियाँ पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की नवीद है। हुकूमत और अस्करी क़यादत की बेहतरीन हिकमत अमली और काविशों के तहत साल 2025 अमन और इस्तेकाम का साल होगा इंशाअल्लाह। हसन रियाज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने सियासी मामला समेत कई अहम मुकदमात के फैसले किए। 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच की तश्कील और चीफ जस्टिस समेत जजेस की तैनाती के तरीक़ेकार में तब्दीली भी इसी साल आई। तफसील जानते हैं एजाज हुसैन से। साल 2024 का आगाज मुल्क में आम इंतखाबात से हुआ, जिनके इनाकात को मुमकिन बनाने में सुप्रीम कोर्ट ने कलीदी किरदार अदा किया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने पर अदालत उज़्मा ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला दिया और इन इंतखाबात को किसी भी सियासी जमात के लिए अहम कानूनी जिम्मेदारी करार दिया। तवील अरसे से चले आ रहे सियासतदानों के खिलाफ ताहियात नाअहली के मुतनाज़ फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल खत्म किया। इसी तरह अरसा दराज से ज़ेर इल्तवा जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय सुनाई और उनको दी जाने वाली सजाए मौत को आइन और कानून के बरखिलाफ करार दिया। मुनहरफ अरकान पार्लियामेंट के हवाले से आइन के आर्टिकल 63 से मुतालिक तनकीद का निशाना बनने वाले अपने फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल कलअदम करार दिया। नैब कानून में तरामीम को दुरुस्त करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कलअदम करार देने का अपना गुज़श्ता फैसला खत्म किया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर मुनक़सम फैसला भी 2024 में आया। सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल बहरिया टाउन के 190 मिलियन पाउंड्स विफाकी हुकूमत को देने का फैसला दिया और इसी तरह कराची बहरिया टाउन के सिलसिले में इसी हाउसिंग सोसाइटी के जिम्मे वाजिबुल अदा 470 अरब रुपए सिंध हुकूमत को देने का फैसला दिया। डैम्स फंड में मौजूद रकम विफाकी हुकूमत के हवाले करने का हुक्म भी सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में दिया। 26वीं आईनी तरमीम के बाद हाई कोर्ट समेत सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस और जजेस की नामजदगी और तैनाती के तरीकाकार में तब्दीली भी 2024 में लाई गई और नए तश्कील पाने वाले जुडिशल कमीशन ने पहली मरतबा 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इंतखाब किया। 26वीं तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच वजूद में आया, जो अब तक मुतअद्दिद अहम मुकदमात की समाअत और फैसले कर चुका है। मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद में वाज़ेह कमी लाने के लिए अदलिया में इस्लाहात को अपनी अव्वलीन तरजीह करार दिया और इस हवाले से उन्होंने अमली इक़दामात भी उठाए। फौजदारी और दीवानी समेत दीगर मुकदमात को उनकी नोयत के एतबार से अलग अलग करके समाअत के लिए मुकर्रर करने से फैसले तक तमाम मराहिल को शफाफ बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का फैसला किया गया। अदलिया की कारकर्दगी में बेहतरी लाने और जेल इस्लाहात के सिलसिले में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दूर दराज के इजला के दौरे भी किए। इजाज हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। बलूचिस्तान में 2024 तब्दीलियों का साल रहा। इन अहम तब्दीलियों और वाक़यात के हवाले से कोयटा से वकार अहमद की रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान में 2024 सियासी गहमा गहमी का साल रहा। 2 मार्च को मीर सरफराज बुगटी बलूचिस्तान के 20वें वजीर आला बन गए। 29 मार्च को ईवान बाला में बलूचिस्तान की नुमाइंदगी का मरहला बिला मुकाबला मुकम्मल हुआ। मार्च में जस्टिस नईम अख्तर अफगान की सुप्रीम कोर्ट तैनाती के बाद बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 22वें चीफ जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकड़ बने। मार्च और अप्रैल में पहली मरतबा फेंसिंग और अमेरिकन फ्लैग फुटबॉल लीग के मुकाबले हुए। मार्शल आर्ट्स फाइटर शाहजेब रिंद ने कराटे कॉम्बैट 44 के बाद अप्रैल में कॉम्बैट 45 में भारत के राणा सिंह और सितंबर में होने वाली कॉम्बैट 49 में ब्राजीलियन मुकाबल को हरा के वर्ल्ड टाइटल नाम किया। 6 मई को जाफर खान मंदूखेल ने सूबे के 24वें गवर्नर का मनसब संभाला। ऑक्सफोर्ड में बलूचिस्तान के तलबा के एडमिशन के लिए MOU जून में तय पाया। बलूचिस्तान गवर्नमेंट और रॉश फार्मा के दरमियान जून में ही कॉस्ट शेयरिंग बेसिस पर अद्वियात फराहमी का मुआहिदा भी तय पाया। मुआहिदे के तहत कैंसर और दीगर इमराज की महंगी तरीन अद्वियात की मरीजों को बिना कीमत फराहमी शुरू हो गई है। नई बलूचिस्तान हुकूमत ने 21 जून को अपना पहला मगर 930 अरब रुपए का सरप्लस बजट दिया। जुलाई में वजीर आजम ने कोयटा दौरे में ज़राई ट्यूबवेलों की सोलराइजेशन का ऐलान किया। 24 अक्टूबर को वजीर आला ने प्रोजेक्ट का बाकायदा इफ्तिताह किया। जुलाई ही में वजीर आजम ने बलूचिस्तान में 4 दानिश स्कूल बनाने का भी ऐलान किया। लोरलाई में बलूचिस्तान की पहली विमेन लाइब्रेरी का इफ्तिताह बाकायदा तौर पर सितंबर में किया गया। बलूचिस्तान में विफाक के ताउन से विंदर डैम लसबिला के प्रोजेक्ट पर काम को अक्टूबर से मजीद तेज किया गया है। अक्टूबर से ही रैकोदिक कॉपर गोल्ड माइंस प्रोजेक्ट पर काम करने वाली कंपनी की तरफ से
बलूचिस्तान के नौजवानों को आला प्रोफेशनल तालीम के लिए बैरून मुल्क भेजने का आगाज हुआ। 15वीं वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक चैंपियनशिप में कोयटा के सैयद बिलाल ने मुद्दे मुकाबिल 44 नौजवानों को हरा के बलूचिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता। वकार अहमद, PTV न्यूज, कोयटा। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने अहम मिशंस में तैनात पाकिस्तान के सफ़ीरों के इजलास की इस्लामाबाद में सदारत की। सफ़ीरों ने आइंदा साल में खारजा पॉलिसी की तरजीहात के लिए इलाकाई और आलमी मंजरनामे के बारे में जायजा पेश किया। नायब वज़ीर आज़म ने इजलास में दो तरफ़ा और कसीरुल-जहती शोबों में मुतहर्रिक खारजा पॉलिसी के विजन पर बात की। उन्होंने दुनिया भर के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के आज़म पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म ने सफ़ीरों को हिदायत की कि बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की तशख़्ख़ुस और शराकतदारी के फ़रोग़ में अपना किरदार अदा करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि पंजाब में तुर्की के सरमायाकारों के लिए वन विंडो ऑपरेशन को मज़ीद फ़ाल बनाया जाएगा। लाहौर में तुर्की के काउंसिल जनरल से मुलाकात में तिजारत, तालीम, सेहत, ज़राअत और सयाहत के शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। इस मुलाकात में पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। काउंसिल जनरल ने वज़ीर आला की क़यादत में जारी अवामी फलाह के मनसूबों को सराहा। उन्होंने कहा कि पंजाब के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने के लिए तैयार हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीका के सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने अलविदाई मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को वक्त की अहम ज़रूरत करार देते हुए कहा कि पायदार तरक्की के लिए फ़रोग़ के लिए इस्लाहात कर रहे हैं। फ़रीक़ैन ने दो तरफ़ा तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक किया। वफाकी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब से चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी ने भी मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारती ताउन और इक़्तिसादी शराकतदारी के फ़रोग़ पर गुफ्तगू की गई। वफाकी वज़ीर ने मजबूत इक़्तिसादी सफारतकारी की अहमियत पर जोर देते हुए पाकिस्तान में बढ़ते हुए तिजारती और सरमायाकारी के मौक़ों को उजागर किया। सफ़ीर खलील हाशमी ने ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने की कोशिशों और मुख्तलिफ मुआहिदों की तफसीलात के हवाले से आगाह किया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब को गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने स्टेट बैंक की जानिब से पाकिस्तान के मालियाती निज़ाम के इस्तेहकाम के लिए जारी और मुजव्वज़ा इक़दामात की सालाना रिपोर्ट पेश की। इस्लामाबाद में होने वाली इस मुलाकात में समंदर पार पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र बढ़ाने के इक़दामात पर भी गुफ्तगू की गई। इस मौके पर बैंकिंग सेक्टर की मजमूई कारकर्दगी और मईशत में उसके कलीदी किरदार को सराहा गया। वज़ारत इक़्तिसादी उमूर और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान बिजली की तकसीम के मंसूबे के लिए $20 करोड़ कर्ज के मुआहदे पर दस्तखत हो गए। वज़ारत इक़्तिसादी उमूर की जानिब से सेक्रेटरी डॉक्टर काजिम न्याज और एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से डिप्टी कंट्री डायरेक्टर असद अलीम ने दस्तखत किए। मनसूबा इब्तिदाई तौर पर बिजली की 3 तकसीम कार कंपनीज के मीटरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, डाटा मैनेजमेंट सिस्टम और असासों की कारकर्दगी बेहतर बनाने में मुआवन होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि बानी PTI पाकिस्तान में इंतशार और तकसीम चाहते हैं। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि PTI ने पाकिस्तान पर दबाव के लिए बैनुल अक़वामी लॉबिस्ट की खिदमात हासिल की हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं हसन नासिर सिद्दीकी। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि बानी PTI पाकिस्तान को दिवालिया करार देने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उनकी मनफी सियासत मुल्क के लिए बेहतर नहीं। इमरान खान ना सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है लेकिन वो इस्तेमाल कर भी रहा है अपनी सहूलतों के अगेंस्ट पाकिस्तान के सलामती को। उसकी पूरी कोशिश है कि उसको रिलीफ मिले और उसके बदले में अगर पाकिस्तान की जो सालमियत है, पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत है, पाकिस्तान के अंदरूनी या बैरूनी जो पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस पैदा करना, पाकिस्तान में इंतशार पैदा करना, पाकिस्तान में भाई से भाई को लड़ाना, पाकिस्तान में पोलराइजेशन को पैदा करना, पाकिस्तान में डिवाइड मजीद करना, ये सारी पॉलिसी और उसमें हर किस्म के हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। सीनियर वजीर ने कहा कि पाराचनार के वाक़यात की जिम्मेदार PTI की सूबाई हुकूमत है। वो अपने सूबे में एक सड़क को खोल नहीं पा रहे। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर अस्करी तंसीबात पर हमला होगा तो मिलिट्री कोर्ट में ही केस चलेगा। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि शहरी नए साल की खुशी में हवाई फायरिंग न करें, इससे मासूम अफराद की जान को खतरात हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि नया साल तमाम पाकिस्तानियों के लिए खुशियां लेकर आएगा। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन, बद इंतजामी और हुकूमती गफलत ने सरकारी हस्पतालों को शदीद बहरान से दो चार कर दिया है। तफसील बताएंगे अमजद अली खान।
پشاور کے لیڈی ریڈنگ ہسپتال سمیت دیگر بڑے ہسپتالوں کی حالت قابل رحم ہے۔ مریض اور ان کے تیمارداروں بدترین حالت میں اپنا علاج کروانے پر مجبور ہیں۔ حکومت کی جانب سے ناکافی وسائل اور مؤثر نگرانی کی کمی کی وجہ سے نہ صرف ان ہسپتالوں کی کارکردگی متاثر ہو رہی ہے بلکہ مریضوں کی زندگیاں بھی داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ جب سے ایم ٹی آئی بنی ہے تو تب سے جو ہے یہ کرپشن کا بازار جو ہے وہ گرم ہے اور یہ ایک ناکام سسٹم ہے، کیونکہ اس کے خلاف ہم نے کئی بار جو ہے ہیلتھ منسٹر سے سی ایم سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ان کا جو ہے ایک تھرڈ پارٹی آڈٹ کریں جب سے یہ حکومت بنی ہے، لیکن جو بنیادی جو کام ہے ان پہ جو ہے وہ دیا نہیں دے رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو جتنے بھی پیریفری کے ہسپتال ہیں اس میں جو ہے سی ٹی اسکین ایم آر آئی ادویات تک دستیاب نہیں ہے۔ صوبائی وزیر صحت اور دیگر متعلقہ حکام سے رابطہ کرنے کی متعدد کوششیں ناکام رہی۔ مختصر مدت میں کرپشن کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ بہت ہی قلیل عرصے میں تقریباً 10 مہینے میں 2 منسٹر محکمہ صحت کے تبدیل ہو گئے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ میڈیسن پرچیز میں آپ کسی بھی سرکاری اسپتال میں جائیں آپ کو کوئی بھی میڈیسن فری نہیں ملے گا۔ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ اسپتالوں کے لیے میڈیسن اور ایکوپمنٹس، بہت سارے اسپتالوں کے لیے ایسے ایکوپمنٹس خریدے ہیں جس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا کے عوام صحت کے شعبے میں بحران پر شدید برہم ہے اور حکومت سے فوری اقدامات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے اس سلسلے میں سنجیدگی نہ دکھائی تو صحت کے شعبے کا نظام مکمل طور پر مفلوج ہو سکتا ہے۔ امجد علی خان، پی ٹی وی نیوز، پشاور۔ انسداد دہشت گردی عدالت گلگت بلتستان نے سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کو 34 سال قید اور 6 لاکھ جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ انسداد دہشت گردی کورٹ کے جج رحمت شاہ نے ڈی جی نادرا کو خالد خورشید کا شناختی کارڈ بھی بلاک کرنے کا حکم دیا۔ سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے اتحاد چوک میں جلسے میں سیکیورٹی اداروں کو دھمکی دی تھی اور چیف الیکشن کمشنر کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیے تھے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے معاون خصوصی اطلاعات ایمان شاہ نے اس حوالے سے سوشل میڈیا پر ہونے والے پروپیگنڈے کو مسترد کر دیا۔ یہ پورا پراپر ایک عدالتی کارروائی ہوئی ہے۔ اسٹیٹ نے اس کو باقاعدہ ایک وکیل کی، ایک پرائیویٹ وکیل کی اس کو جو ہے نا فیسلٹی دی تھی۔ اس نے تمام جو 6 گواہ گزارے گئے ان پہ جرح کی ہے، پروسیڈنگ ہوئی ہے، جا کے یہ سزا ہوئی ہے۔ ڈپٹی چیئرمین سینیٹ سیدال خان سے وفاقی سیکرٹری اطلاعات امبرین جان نے ملاقات کی۔ وفاقی سیکرٹری اطلاعات نے وزارت کی مجموعی کارکردگی، شعبہ ابلاغ عامہ کے حوالے سے حکمت عملی اور پالیسی سے آگاہ کیا اور نئے منصوبوں پر بریفنگ دی۔ وفاقی سیکرٹری اطلاعات امبرین جان نے بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے آگاہی مہم ترتیب دینے پر زور دیا۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے پی ٹی وی کے ایوان بالا کی کوریج کے حوالے سے کاوشوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ٹیلی ویژن ہمارا قومی اثاثہ ہے، ملک کی ثقافت اجاگر کرنے میں پی ٹی وی کا کلیدی کردار رہا ہے، اس کے مسائل حل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ پاک بحریہ کی کمان اینڈ سٹاف کانفرنس نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں ہوئی۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف نے کانفرنس کی صدارت کی۔ نیول چیف کو فروری 2025 میں ہونے والی پاک بحریہ کی کثیر الجہتی مشق امن اور امن ڈائیلاگ کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ کانفرنس میں بحر ہند میں سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ، قومی سمندری تجارتی گزرگاہوں کے تحفظ اور سلامتی کے اقدامات پر غور کیا گیا۔ شرکاء نے کانفرنس میں میری ٹائم سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جدید ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی کے حصول کو سراہا۔ نیول چیف نے ساحلی علاقوں کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کو تیز کرنے پر زور دیا۔ نیول چیف کو پاک بحریہ کی جاری اور مستقبل کے منصوبوں پر بھی بریفنگ دی گئی۔ نیول چیف نے ملکی بحری سرحدوں کے دفاع کے لیے پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ لاہور میں سال نو کی تقریبات کے سلسلے میں آتش بازی پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کی جانب سے جاری کیا گیا نوٹیفیکیشن کے مطابق پابندی فضا میں آلودگی کے پیش نظر عائد کی گئی ہے۔ اس کی خلاف ورزی پر بلا امتیاز کارروائی کی جائے گی۔ نوٹیفیکیشن میں شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ اسموک کے تدارک کے لیے ضلعی انتظامیہ سے مکمل تعاون کریں۔ پاک فوج کی جانب سے قوم کو نیا سال مبارک۔ افواج پاکستان مادر وطن کی خدمت کے جذبے سے ہمہ وقت سرشار ہیں۔ پاک فوج ملک کی سلامتی اور ترقی کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہیں۔ برف پوش علاقوں پر تعینات پاک فوج کے جوان ملک و قوم کی حفاظت کے لیے پرعزم ہیں۔ برف پوش سیاچن گلیشیئرز پر تعینات پاک فوج کے جوانوں کا یہ کہنا ہے کہ ہڈیوں کو جما دینے والی سردی میں بھی ہمارا جذبہ بلند ہے۔ ہماری دعا ہے کہ نیا سال اس ملک کے لیے خوشیاں اور کامیابیاں لے کر آئے۔ فوجی جوانوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم بارڈر پر اس لیے موجود ہیں کہ ہمارے وطن کا جھنڈا سر بلند رہے۔
पाक फौज हर मुहाज पर पाकिस्तान की सालमियत और बका के लिए तैयार है। हम सियाचिन ग्लेशियर्स पर मौजूद पाकिस्तान का झंडा लहराए मुल्क की हिफाजत पर मामूर हैं। हम सर्द हवाओं और बर्फपोश पहाड़ों के साए तले पूरी कौम को नए साल की मुबारकबाद पेश करते हैं। फौजी जवानों का कहना था कि पाक फौज की जानिब से अहले वतन को साल नौ मुबारक हो। उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल पाकिस्तान के लिए खुशियों की नवीद और इत्तेहाद और इत्तेफाक का साल होगा। 2025 का आगाज हो गया है। न्यूजीलैंड में साल नौ का आगाज ऑकलैंड शहर के स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी के मुजाहरे से हुआ। ऑकलैंड के 328 मीटर ऊंचे स्काई टावर पर 10 सेकंड के उल्टी गिनती के बाद आसमान रंगो नूर में नहा गया, जबकि इस मौके पर शहरियों की बड़ी तादाद ने नए साल को खुशामदीद कहा। ऑस्ट्रेलिया में भी नए साल के आगाज ने उफक पर रंग बिखेर दिए, जहां सिडनी शहर में हार्बर ब्रिज पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा देखा गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया के मुख्तलिफ मुल्कों में 2024 का सूरज गुरूब हो गया। लोगों की बड़ी तादाद ने गुरूब आफ्ताब का मंजर देखा। चीन के सदर शी जिनपिंग का दुनिया भर के ममालिक की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। नए साल के पैगाम में एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान समेत तमाम मुल्कों के साथ खुशगवार और दोस्ताना ताल्लुकात जारी रखने का अज़्म। नए साल के मौके पर चीन के सदर शी जिनपिंग ने नए साल की मुबारकबाद का पैगाम दिया। उन्होंने तमाम लोगों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया कि हर मुराद पूरी हो, खुशहाल और सलामत रहें। उन्होंने कहा कि साल 2025 में चीन मुख्तलिफ ममालिक के साथ मिलकर दुनिया के खूबसूरत मुस्तकबिल के लिए दोस्ताना ताउन पर अमल करने वाले, तहजीब और बाहमी सीखने के अमल को आगे बढ़ाने वाले और इंसानियत के हमनसीब मुआशरे की तामीर में शिरकत करने वाले मुल्क की हैसियत से अपना किरदार जारी रखेगा। मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज इंतजामिया की तरफ से कश्मीरियों की अमलाक की जब्ती का इस्तेमारी सिलसिला जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज इंतजामिया ने जिला राजौरी में मजीद 2 कश्मीरियों की 6 कनाल 18 मरले पर मुश्तमिल 2 जायदादें जब्त कर ली हैं, जबकि जिला उधमपुर में 3 कश्मीरियों राज अली, गुलाम कादिर और मोहम्मद रफीक को बेबुनियाद इल्जामात पर काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। इंसानी हकूक के कारकुनों ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी जबरी गिरफ्तारियों की मुहिम की मजम्मत की है, जहाँ भारतीय फौजी और खुफिया एजेंसियां मुहासिर और तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान कश्मीरियों को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बना रही हैं। उन्होंने कहा कि हुर्रियत रहनुमाओं, सहाफियों और आम कश्मीरियों को काले कवानीन के तहत झूठे मुकदमात में फंसाया जा रहा है। 5000 से ज्यादा अफराद गैर कानूनी तौर पर नजरबंद हैं। दूसरी जानिब रियासी के मुतनाज़ा विष्णुदेव चेयरलिफ्ट मंसूबे के खिलाफ आज मुसलसल 7वें दिन भी एहतजाज जारी रहा। एहतजाज की वजह से इलाके में निज़ाम जिंदगी मफलूज रहा। नाज़रीन, महकमा मौसमियात ने तवील खुश्क साली के बाद मुल्क भर में बारिशों की नवीद सुना दी है। बारिश का सबब बनने वाली हवाएं 1 जनवरी से मुल्क के मगरबी इलाकों में दाखिल होंगी। गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 5 जनवरी तक वक्फे से बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, मरी और गलियात में लैंड स्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने के खतरे की वजह से मुतालिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। नाज़रीन, साल 2024 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी की बात करें तो कौमी टीम ने मजमूई तौर पर 42 बैनुल-अक़वामी मैचेस खेले, 18 मैच जीते और 22 में हरीफ टीम कामयाब रही। एक मैच बेनतीजा रहा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की रवां साल की परफॉर्मेंस के हवाले से देखते हैं निसार मेहदी की रिपोर्ट। साल 2024 पाकिस्तान क्रिकेट टीम 6 टेस्ट, 9 वनडे और 27 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलने के लिए मैदान में उतरी। साल के आगाज में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ बैनुल-अक़वामी टेस्ट सीरीज 3-0 से जीती।
जनवरी में कौमी टीम ने न्यूजीलैंड का दौरा किया, जहां 5 मैचेस की T20 सीरीज मेजबान टीम ने 4-1 से अपने नाम की। फरवरी मार्च में पाकिस्तान सुपर लीग के 90 एडिशन का टाइटल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीत कर रिकॉर्ड 3 मरतबा चैंपियन होने का एजाज हासिल किया। अप्रैल में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का दौरा किया और दोनों टीमों के दरमियान 5 मैचेस की T20 सीरीज 2-2 से बराबर रहा। मई में पाकिस्तान ने T20 सीरीज के लिए आयरलैंड और इंग्लैंड का दौरा किया। आयरलैंड के खिलाफ सीरीज 2-1 से अपने नाम की, जबकि कौमी टीम को इंग्लैंड ने 2-0 से मात दी। जून में अमेरिका और वेस्ट इंडीज ने T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी की। मेगा इवेंट में पाकिस्तान टीम ग्रुप स्टेज से आगे न बढ़ सकी। पाकिस्तान ने 4 में से 2 मैचेस जीते, जबकि 2 में नाकामी का सामना करना पड़ा। अगस्त सितंबर में पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज के लिए बांग्लादेश की मेजबानी की। कौमी टीम को तारीख में पहली मरतबा बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 2-0 से नाकामी हुई। अक्टूबर में पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज में 2-1 से कामयाबी समेटी। Pakistan win the series 2-1. What a remarkable comeback. नवंबर में कौमी क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया और 2002 के बाद पहली बार एक रोजा सीरीज अपने नाम की। वनडे सीरीज में पाकिस्तान 2-1 से कामयाब रहा। T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने क्लीन स्वीप किया। They've done it in this country. Their first ODI series win in Australia in 22 years. नवंबर दिसंबर में पाकिस्तान ने एक रोजा और T20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे का दौरा किया। दोनों व्हाइट बॉल सीरीज कौमी टीम ने 2-1 से अपने नाम की। साल का इख्तिताम कौमी क्रिकेट टीम जनूबी अफ्रीका के दौरे से कर रही है। T20 सीरीज में 2-0 से नाकामी के बाद वनडे सीरीज में पाकिस्तान ने मेजबान टीम को क्लीन स्वीप किया और ये एजाज हासिल करने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई। निसार मेहदी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। यूएस जूनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले हरमास अली राजा वतन वापस पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन के ओहदेदारों और रिश्तेदारों समेत लोगों ने बड़ी तादाद में नन्हे खिलाड़ी का पुरतबाक इस्तकबाल किया। हरमास अली राजा को कंधे पर बैठाकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। हरमास अली राजा ने बॉयज़ अंडर 11 कैटेगरी में अमेरिका के आर्चीबिल्ड को 11-8, 11-8 और 11-8 से हराकर तिलाई तमगा अपने नाम किया। इवेंट में गर्ल्स अंडर 13 का टाइटल महानूर अली ने जीता था। बिग बैश क्रिकेट लीग में पर्थ स्कॉर्चर्स ने एडिलेड स्ट्राइकर्स को 7 विकेटों से शिकस्त दी। एडिलेड में खेले गए मैच में मेजबान टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 182 रन बनाए। ब्रेंडन डॉकेट ने 47 और कैमरॉन बॉयस ने 29 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। पर्थ स्कॉर्चर्स ने जे रॉचर्डसन ने 3 खिलाड़ी को आउट किया। पर्थ स्कॉर्चर्स ने 143 रन का हदफ 15वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। ओपनर फिन एलन ने 23 गेंदों पर 50 रन स्कोर किए। कोपर कनॉली ने 48 और स्टोन टर्नर ने 35 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। And with that stroke, the Perth Scorchers. इंग्लिश प्रीमियर लीग में न्यूकैसल ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को शिकस्त दी। ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले गए मैच में न्यूकैसल ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ 2-0 से कामयाबी समेटी। खेल के चौथे मिनट में फातेह टीम की जानिब से अलेक्जेंडर है। बलूचिस्तान में नए साल के आगाज पर विमेन फुटसॉल मैच का एहतमाम किया जा रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से वकार अहमद। नए साल के आगाज पर कोयटा में पहला विमेन फुटसॉल मैच 1 जनवरी को खेला जा रहा है। मैच पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट फॉर गर्ल्स सरियाब रोड पर खेला जाएगा। नए साल के वस्त में बलूचिस्तान फुटबॉल लीग के इंतजाम भी किए जा रहे हैं, क्योंकि खेलों के मैदान आबाद करना बलूचिस्तान हुकूमत का अज़्म है। बलूचिस्तान, लेट्स शाइन एंड राइज टुगेदर। साल का पहला दिन 1 जनवरी 1 बजे पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट फॉर गर्ल्स सरियाब में आपके लिए फुटसॉल के मैच का इनेकाद किया जा रहा है। बलूचिस्तान हुकूमत का विजन नौजवानों को सपोर्ट और मस्बत सरगर्मियों के मौके देना है। वकार अहमद, PTV न्यूज, कोयटा। बहुत शुक्रिया रुमैया साहब का। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें हमारी टीम की हमरा इजाज़त दीजिए। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहे, आपका शुक्रिया। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त।